Can I please have the producer of the film, Kuku Mohanka, on the stage? And you have some fans following them. Let me tell you a little about her. Hailing from a traditional industrialist Marwari family, business runs in her blood. A pioneering and fearless entrepreneur starting off at the age of 19. She has since ventured into real estate, manufacturing and investments, creating an empire of her own. She has now ventured into the film industry and has her own production house, Aeon Entertainment. So Yatris is her debut film as a producer. Ladies and gentlemen, Kuku Bhaiya. Alright, up next I would like to call on stage the guy जिन्होंने की इस फिल्म में जो देखा वो हम सभी लोगों को आज दिखाई दे रहा है. The producer is right here and now I would like to call on stage the director of the film, Harish Vyas. An Indian writer and director who is known for his works in Punjabi and Hindi film industries. He of course rose to fame with his maiden directorial venture, Proper Patola. The 2018 release Angrezi Mein Kehte Hain was also his debut into the mainstream Bollywood cinema, and now he's here with Yatris and we loved the trailer. So thank you so much for the film and please have a seat. अब मैं जिनको स्टेज पर बुलाने वाली हूँ इनके बारे में मैं जितना कहूँगी मैं कम ही होगा, मैं छोटी ही रहूँगी और ये मुझसे ओहदे में बहुत बड़े ही रहेंगे. तो जोरदार तालियां हो जाए रघुवीर यादव जी के लिए. You've seen him in Lagan, you've seen him in Peeply Live, you've seen him singing songs, you've seen him making people laugh, you've seen him making people cry, and now you are going to make him people relate to his character with the film Yatris. Thank you so much, sir, यहाँ पर आने के लिए. Alright. अगली मैं यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूँगी उन्हें जिन्हें हम इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम करते देख रहे हैं. Be it her dramatic roles or the comedy ones which are my favorite. Ladies and gentlemen, put your hands together for Seema Babaji. She's acted in a few of uber successful Hindi language films like Bareilly Ki Barfi, Ram Prasad Ki Dervi, Shubh Mangal Zyada Savdhan, Badhai Do and Dum Laga Ke Haisha, and she's also the recipient of many Filmfare awards. Thank you so much for joining me on stage. Alright, मैं यहाँ आती हूँ. अगले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी एक ऐसी एक्ट्रेस कम पर्सनालिटी को who is one of the fastest emerging Indian influencers, and she has the talent that I don't think anybody else in the country has except for her own father. So I think, if there's somebody who could take it one notch higher, it was you, Jamie, and this is such a big compliment I have to tell you, so let's have Jamie Lever on stage. We've seen her acting in Bollywood films like Houseful 4 and Kiss Kiss Ko Pyar Karu, and now she is here as a part of Yatris. I'm a big fan. Yeah, so are all of us, right? Alright, up next, Anurag Malhan. Can we have you on stage? Anurag Malhan is not just an upcoming Indian actor, model, but also a sports person. And Yatris is Malhan's Hindi feature acting debut. We've seen him before this on television. So he's also a state-level cricketer. So I'm so happy to have you here with us this afternoon. And last but definitely not the least, can we please have on stage Chahat Khanna. We've loved her on television as Aisha in Bade Achhe Lagte Hain, as Kajal, as Ashka Vadva, and now you are going to see her as Sonam in Yatris, the very ravishing Chahat Khanna on stage. I request you all to please take your seats. Can we have the mics? On screen, I think you have the perfect personality, doesn't she? Right? We do agree, right? Maybe as a cameo. I think if you, it's going to just the आग हो जाएगा यहाँ पर, वैसे just आग लगा दो. कब होने वाला है? Please बताइए और माफी अगर मैंने कुछ गलत बोला. Hi everyone, I'm very happy to see all of you here and to be a part of our film and my team of course. And regarding doing a role, okay, surprise, surprise, wait and see the film. Oh, अरे ये तो कुछ सीक्रेट बाहर आई है. चलिए इसको सीक्रेट
ही रहने देंगे, आपका रोल को राज रहने देंगे. बट एक्चुअली जेन्युइनली आई वांट टू नो दिस फ्रॉम यू कि एक मिडिल क्लास फैमिली एंटरटेनर, ऐसा क्या था इस फिल्म में या स्क्रिप्ट में दैट मेड यू डिसाइड ऑन दिस कि हाँ इस फिल्म के साथ हम शुरू करेंगे, डेब्यू यही करेगा हमारे प्रोडक्शन हाउस का. See, what's happening in the industry is they're making a lot of films which are to do with a lot of action, Right. Too much of fighting, and really missing out on the really family drama. Absolutely. And the issues in the family today. So we thought, it would be something really good to bring out to the public, and bring it out especially to show how, a family can get together, because there's so many issues these days, Yeah. So it is close to my heart actually. I felt related to it, So I thought that would be the first film, and it would be good because it would relate to the masses also, for sure. ये आपने इतनी सही बात कही ना कि देयर आर सो मेनी फिल्म्स जो कि एक्शन बेस्ड हैं व्हिच आर ग्रेट बिकॉज द ऑडियंस इज लविंग इट, बट एक अलग किस्म की ऑडियंस भी है, मे बी लाइक मी. सो आई हैव अ 3-year-old daughter, and देयर आर 80% of the films that I can't take her to, and surprisingly she enjoys watching films. So she's not one of those children who's crying in the back, okay? Don't tell me that. So I want to take her to movies. And one more thing I'll say, it's not only the storyline, but our music also is amazing. Oh, ये बात जो है ये मैं हरीश जी तक लेकर के आऊंगी. आपको मुझे बताना है इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में. मैं थोड़ा सा अभी साइड में आ जाती हूँ आपसे बात करते हुए कि मैंने सुना है इसमें मोहित चौहान की आवाज़ में भी गाना है जो कि हमने शायद एक झलकी देखी इन द ट्रेलर. And then don't tell me there's Amit Kumar also singing some. So please tell me a little about the music that we have not seen yet, but then just unravel a little bit. थैंक यू एवरीवन, सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए, और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सबका. और म्यूज़िक, मैं खुद बड़ा म्यूज़िक से बड़ा ताल्लुक़ रखता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे जब हमारे साथ में रघु शर्मा जो खुद इतने अच्छे म्यूजिशियन हैं, सीमा जी जो, और जैमी इतना अच्छा गाती हैं, तो पूरी टीम ही हमारे पास ऐसे म्यूजिशियंस की थी, और सब मैम को गाने पसंद है ओल्डीज़, और मुझे खुद ही बड़ा शौक है पुराने गानों का जी. तो मेरी जो पहले भी फिल्में थी उसमें भी एक थोड़ा म्यूजिक एक अलग तरह का था, अंग्रेजी में कहते हैं, हमने ठुमरी यूज़ की थी, सब चीज़ें की थी. तो इसमें भी जब हमारा म्यूजिक था तो हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट भी सिंगर भी ट्राई करते हैं. हमने नए सिंगर्स को भी चांस दिया है, नुपुर पंत, और जैसे मैम ने उनको कहा कि नहीं अगर कोई अच्छा टैलेंट है तो उसको आप आगे लाइए, तो विच इज़ वेरी गुड. तो उसमें हमने नुपुर पंत को भी गवाया है साथ में, और अभी रोहित जी भी हमारे सामने बैठे हैं, उनका भी एक गाना है बड़ा खूबसूरत, दिव्या कुमार ने गाया. एक गाना था जहाँ पर हम चाह रहे थे, गाना बेसिकली हम चाह रहे थे जो गाना एक है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है जी, जिंदगी हाँ फिर भी खूबसूरत है. तो वो गाना हम चाह रहे थे, लेकिन वो राइट का इशू था, तो हमने कहा हम उससे मिलता जुलता कुछ गाना बनाते हैं. हमें लगा कि उसको कौन गा सकता है, तो किशोर साहब के अलावा वो हमें लगा कि उस आवाज़ को जो है अमित कुमार बहुत जस्टिफाइड करेंगे. तो हम अमित कुमार जी के पास पहुँचे और उनको बड़ा अच्छा लगा सुन के कि चलो आप गवाना चाहते हैं गवाइए. तो वो गाना बहुत खूबसूरत बना और बहुत अच्छा कंपोज हुआ, बहुत अच्छा ट्यून है, बड़ा रेट्रो फील है उस गाने का. तो अमित कुमार हैं, मोहित चौहान मेरी बैक फिल्म में भी गा चुके हैं, तो मोहित चौहान के वैसे ही बहुत फैन थे, और मोहित चौहान के लिए मैम ने कहा कि अगर मोहित चौहान नहीं गाएगा हरीश तो ये गाना मैं नहीं लूँगी, ये गाना मोहित चौहान नहीं गाएगा. तो ओवरऑल जो गाने हमारे म्यूजिक वाकई फिल्म से रिलेटेड हैं, फिल्म से बाहर कोई गाना नहीं है, जैसे फिल्म को कहानी को आगे बढ़ाते हुए गाने हैं. तो मतलब आपने रघुवीर सर से गवाए कुछ? नहीं, इस पे नहीं गवाया, लेकिन मेरी एक और फिल्म है, मजे की बात है, रघु सर के साथ, उसमें रघु सर ने 2 गाने गाए हैं. अच्छा, तो फिल्म में नहीं है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे बैठ करके मंडली बैठक होती थी. सर वो जहाँ हो तो रघुवीर जी आपसे जानना चाहते हैं, मतलब ये ये सवाल तो आना ही है कि नाउ दैट द फिल्म इज अबाउट दिस वन बिग डिसफंक्शनल बट ब्यूटीफुल फैमिली. सो जब आप लोग शूट कर रहे थे तब भी परिवार की तरह हो गए थे क्या? ऐसे बैठ करके खिटपिट होती थी क्या आप लोगों के बीच में? पहले से ही परिवार की माइक सर, बाद में और परिवार बन गए, उसके बाद और भी ज्यादा गाढ़े परिवार. सर माइक में प्लीज. माइक की जरूरत नहीं, मैं थिएटर लगा दूं, वहां तक सुनाई दे रहा है. सारी जो ये खुराफातें होती ना कि आवाज वहां तक नहीं है, वहां तक है, इसमें हम कमजोर कर देते हैं कि मेरा हाथ बहुत बोलते मैं बहुत भागता रहा, तो माइक दिया, मैंने हाथ हिलाया, माइक निकल के उधर चला. मेरी आवाज आ रही ना? बस
कहीं परिवार के साथ बैठे हो तो अपने आप आवाज आ जाएगी, माइक की वाह। जरूरत नहीं है मुझे। सर वो चाहते हैं कि माइक थोड़ा सा उधर तक चले जाए तो वो शॉट निकाल करके चलाएंगे ना प्रोमो के जी दौरान। जी जी, अरे यार कमजोर कर दिया माइक में आपने। देखिए सर ना, आप अभी ही मुझे दिखा दिया आपके ना एक पर्सनालिटी ट्रेट है, आप लोगों को हंसते हंसते रुला सकते हैं और रोते रोते हंसा सकते हैं. सो दैट्स लाइक अ ह्यूज थिंग दैट यू डू. इस फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? लोगों को रुला रहे हैं कि हंसा रहे हैं? पता नहीं मैं लोगों को क्या करवा रहा हूँ वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दोनों हंस भी रहा हूँ रो भी रहा आप हंस भी रहे होंगे. हूँ। औरों का पता नहीं है। रुला कौन रही है आपको? सीमा जी रुला रही है कि बच्चे रुला रहे हैं? ये इनकी बात नहीं, ये हंसाएंगी मुझे कभी, अरे 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 अरे, ये हंसाएंगी मेरे बगल में बैठी मुझे, हरीश भाई आप इधर आई मुझे उधर। ये तो बदले को उतारू है। हे भगवान. सीमा जी हमें जानना है ये क्या बदला लेना चाहती हैं आप रघुवीर जी से? खामखा मुझे बदनाम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, मेरे जैसी कोई शरीफ औरत होगी ये मुझे खामखा परेशान कर रहे हैं. और तो हंस माइक में रहे जिससे उनकी हंसी सुनाई दे. पहले आप शरीफ का अर्थ बता दीजिए मुझे। नहीं, वो मेरी ऑडियंस जानती है मुझे अच्छी तरह से, मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसमें मेरी ऑडियंस नाराज हुई है मुझसे. आप खामखा का इल्जाम मुझ पे नहीं लगा सकते, वोटिंग ज्यादा मिल जाएगी मुझे. ओहो, हमें दिखाई दे रहा है. आई थिंक यू नो इसका शॉट लेकर के मूवी में कहीं बीच में फिट कर देना चाहिए, बिकॉज वी कैन सी दैट केमिस्ट्री हैपनिंग राइट हियर. द वर्क हस्बैंड एंड द वर्क वाइफ वैसे बन जाते हैं ना. रघु जी मुझसे बहुत सीनियर हैं और बहुत ही कमाल एक्टर हैं और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. और हम जब शूटिंग के दौरान हमारी जब बातचीत हुई कि कौन किस वजह से इस फिल्म को करने के लिए ज़्यादा उत्साहित था, तो मैंने सबके सामने ये बहुत ज़ोर से कहा था कि बहुत बड़ा रीज़न है इस फिल्म को करने का कि रघु जी के साथ मैं काम करना चाहती थी और वो तमन्ना मेरी पूरी हो गई. क्या बात है. ये तमन्ना मेरी भी थी सर कि मैं एक दिन ऐसा शो होस्ट करूं जब आप साथ में हो, और आज मेरी भी तमन्ना पूरी हो गई. अच्छा जेमी, आपसे हम जानना चाहते हैं यू नो जैसा कि सब लोग जानते हैं एंड आई एम श्योर यू आर आल्सो अवेयर ऑफ इट, द मोमेंट वी इमेजिन यू, वी थिंक ऑफ यू, वी थिंक कॉमेडी बिकॉज इट जस्ट कम्स naturally to us, and also all those expressions that we can make nobody else can. But you're not playing a comic character in the film, right? How difficult was that? I'm not actually. That was the biggest challenge for me to not do what comes naturally to. That's right. ठीक है. And इसमें सर ने मुझे मेरे लिए सोचा, ये कैरेक्टर वाज लाइक अ शॉकर फॉर मी एंड ही वाज वेरी कन्विंस्ड कि जेमी कर पाएगी. तो जब उन्होंने मुझे नरेट किया था, ही सेड मुझे पता है जेमी के, बिकॉज जो लोग कॉमेडी कर सकते हैं वो इमोशंस को अच्छी तरह से समझते हैं एंड वो लोग सीरियस मतलब पोर्ट्रे कर सकेंगे. सो ही वाज वेरी कन्विंस्ड. तो आई वाज कन्विंस्ड लुकिंग एट हिज कन्विक्शन behind this character for me. So I'm thankful sir कि आपने मेरे लिए सोचा, and people will see me in a different light, so I feel very very happy. Firstly this is a big moment for me. मैंने कभी अपने आप को पोस्टर पर नहीं देखा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई. But you know, there's one more question that I want to ask you, और थोड़ा सा ये edgy है. आपको मुझे बताना है कि you know I see so many influencers now turning actors, and we have a line of them. You know, अभी पूरी लिस्ट बन गई है. अब भी current movies में जो हम देख रहे हैं content creators and influencers को actors बनते हुए. Is that the end game for every influencer now कि ये करके हमें Bollywood में जाना है और acting करनी है? Is that? No, actually surprisingly मैं बहुत सारे influencers से मिली हूँ जो they are very happy with what they do. And they are very happy and they are getting a lot of success, they are getting a lot of fame and a lot of money also. And वो बहुत ज़्यादा खुश हैं in the job that they are doing, and I really respect them and appreciate, because वो जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा hard work है. I don't think actors कर सकेंगे, because consistently content create करना, उसको you know produce करते जाना with that kind of energy is really commendable. So respect to all influencers. But जो लोग acting में convert कर रहे हैं अपने आप को, they are becoming actors. It's nice to see them on the big screen because वो deserve भी करते हैं. Yeah. You know, good I think it's a opportunities. great platform now जिसपे हमें नए actors तलाश कर पाने की you know एक मौका मिल रहा है. So that's what it is. Thank you so much. अनुराग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये क्रिकेट और ये एक्टिंग ये कैसे हो गया? आप मतलब एक्टिंग में छक्के चौके छुड़ा रहे हैं या क्रिकेट में एक्टिंग कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कि कैसे मिक्स हो रही है दोनों चीजें? मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे भी छक्के चौके छुड़ा दूँ. हाँ लग रहा है. हाँ ये बता रहे हैं, हरीश जी बता रहे हैं. वो सर ही बता सकते हैं ऑडियंस. But tell me a little about this being your debut project. So how does it feel? आई मीन मैं थिएटर कर रहा था 2-2.5 साल से दिल्ली में, फिर यहाँ आया, आई डिड अ टेलीविजन शो, बट क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी, एंड आई रियली वांटेड कि लाइक
बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, एक्शन फिल्म्स आ रही थी, बहुत चीज़ें आ रही थी, बट आई रियली वांटेड टू डू समथिंग वेयर एग्जैक्टली आई कैन सिट विद माय नानी, माय ग्रैंड, माय मतलब मेरी दादी के साथ बैठ के मैं मूवी देख सकूँ। Right. तो ये जब स्क्रिप्ट सर के पास आई, कुकू जी के पास आई, तो आई वाज लाइक कि चाहे छोटा सा भी रोल हो, मुझे करना है। Right. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, एंड लाइक आई रियली वांट मासेस टू सी मी, चाहे थोड़ा बहुत भी देखें, ज़्यादा भी देखें, एंड होपफुली दे लव मी। That's amazing, you know, ये जो आपने कहा, जो कुकू जी ने पहले भी कहा था कि हम अपने परिवार वालों के साथ में बैठ करके कुछ देख तो पाए। We all agree that entertainment has now reached our mobile phones, but that doesn't mean कि हम सभी लोगों को individually देखना अपने मोबाइल फोन में ही जरूरी है। We've lost the entire fun of शाम को 8 बजे बैठ करके सब मिल करके टीवी पे कुछ देख रहे हैं या फिर वीकेंड पे मिल करके किसी फिल्म के लिए जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट दिस फिल्म इज ब्रिंगिंग बैक, वेरी राइटली सेड। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। तो आई होप कि इसके आगे और भी बहुत अभी लंबी लिस्ट बनना बाकी है। Hopefully in the next few months you're going to see something new. Oh, something is in the pipeline already. Yes, it is. That's lovely. All the best for that. Chahat, we've seen you doing some big roles on television, and we've also seen you cracking some great roles in movies. So what made you choose Yatris? Hi, thank you so much for everybody for coming here firstly, and exactly what Anurag said, that you know I wanted to do something which I can watch it with my daughters. Yeah. I have daughters and my family, and there's so much of drama, so much of content happening here where you see so much of crime, you know, erotic, whatnot. But then, is that a feel-good factor when you leave the theater? Does that give you a feel-good feeling? For me, no. I like to watch this kind of genre. This is like my genre. And when I got an offer of something which I like to watch, I was like, I want to grab it. Why not? So even if I had a small character, I was like, it's okay. This is where I see myself. So there's no way I would have given a second thought. क्या बात है. So basically we have to thank Kuku ji and Harish for bringing this beautiful film to all of us, which looks like it's a wholesome family entertainer. And with this I open the floor for questions. Any questions that the media has? Can we pass some mics please? फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, और आपसे जानना चाहेंगे कि यात्रीज की यात्रा आप लोगों के लिए कैसी थी? बहुत मजेदार थी। आप सबसे जानना चाहेंगे। देखिए, किसी भी फिल्म को बनाने में एक अलग एक यात्रा होती है, और हम एक्टर्स तो शायद मुझे लगता है ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बन चुका है कि हर फिल्म की यात्रा को हम एंजॉय करते हैं, और इसका तो नाम ही यात्री था, तो इसमें तो ऑब्वियस से यात्रा कर रहे थे हम लोग। और जैसा कि आपने देखा ही है कि ये जो एक सब्जेक्ट ही ऐसा है कि बनारस टू बैंकॉक, तो वो भी एक बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी, और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, और हम फैमिली हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक फैमिली ट्रिप में गए हुए हैं, और फिर बाद में कुछ दिनों तक हम मिस करते हैं, उसके बाद हम फ़ोन भी नहीं करते एक दूसरे को। नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया एक्चुअली। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और यहाँ वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल शूटिंग के बाद हम वही कर रहे थे। मैं और मैम बस निकल पड़ते थे, शॉपिंग करते थे, बार्गेन ढेर सारा हमने किया, बहुत बार्गेन किया, बहुत शॉपिंग की, और सर की भी हमने काफ़ी शॉपिंग कराई साथ में। और सर के साथ बहुत ब्यूटीफुल और स्वीट मेमोरीज थे। सर के हाथ में कुछ भी आ जाता था तो उसका बाजा वो बना देते थे, जैसे स्ट्रॉ आ गया या कुछ भी आ गया तो उसकी बांसुरी बन जाएगी। तो इस तरह की मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी, एंड इट वाज रियली फन टाइम टुगेदर। जैसे मेरा मानना है कि हम कभी भी किसी यात्रा जर्नी पे निकलते हैं, वो हमें कुछ सिखा के जाती है किसी ना किसी रूप में। तो मेरी यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि सिखाने वाले बहुत दिग्गज लोग थे, और अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सीमा जी, रघु सर, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब बिना बताए मैंने चुपचाप इनसे कुछ ना कुछ सीखा है, और मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव ये रहा, और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। सभी ने कुछ ना कुछ सीखा, अनुराग ने, चाहत ने, जैमी ने, हमने बहुत इन्जॉय भी किया है। जैसे मैम ने कहा कि हम एक फैमिली की तरह बन जाते हैं, और वो फैमिली रह जाती है, तो बहुत मज़ा आया सीरियसली। ऐसे ही मुझे भी बहुत मज़ा आया। जैसे बनारस में तो हम इतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे,
जब हमारा सेकंड फेस आया बैंकॉक का तो सबसे अच्छा था। शॉर्ट के बीच में मैं और रघु सर मसाज करा रहे हैं रात को पार्टी कर रहे थे। ऐसा नहीं सीन था मसाज का, ऐसा नहीं मसाज करा रहा था। अच्छा तो उस दिन शूटिंग पे इसलिए लेट आए थे आप लोग मसाज करा। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फुट मसाज। और वैसे में वो एक सीन था मसाज का। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा। और सीमा मैम से भी मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगा। सीमा मैम एक तरीका है मैम का कि डांट के बहुत प्यार से बेस्ट निकलवा देती हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि जो मेरा पहला शॉट था कि है नहीं था, तो मैं बड़ा आराम से बोल रहा था, तो मैम ने एक देखा, दूसरा शॉट देखा, कहती नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा हाई पिच करके बोलो। तो छोटी छोटी चीज़ें मैम ने बड़े प्यार से मुझे सिखाई और मेरी आगे की फिल्मों में मुझे बहुत काम आएगी। विद जेमी एज वेल, कॉमिक टाइमिंग तो थी, बट जेमी के साथ बिना कॉमिक टाइमिंग वाली चीज़ें भी मुझे सीखने को मिली। रघु सर ज़्यादा बताते नहीं है, बट आंखों आंखों में कहते हैं ठीक है, हो गया। पहले वाला सीन पढ़ा था, मैंने कहा जी, इसके बाद वाला मैंने कहा जी, बस क्या दिक्कत है। इट वॉज गुड। चाहत और मेरे इंटरेक्शन 3-4 दिन का बहुत अच्छा था। हमें बोर्ड पे छोड़ दिया था और पीछे शॉट चल रहा है, करो। मैंने कहा सर क्या करें, आई मीन इट्स अ लव सॉन्ग, आई मीन यू डू समथिंग। मैंने कहा सर बोर्ड में क्या करें। इट वॉज गुड। हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। और हरीश सर के साथ मेरी दूसरी मूवी है जो रिलीज होगी सेकंड। हरीश सर मेरी टाइमिंग मतलब सर के साथ काम करके इतना अच्छा लगता है। सर को मेरी वो नर्व्स पकड़ में आ गई है, तो सर प्यार से, पता भी नहीं चलता कि आपने कब अच्छा शॉट दे दिया, कब खराब दे दिया, वो बता देते हैं और शूट पूरा हो जाता है। आप लोगों से ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिया में पहले आप Yeah. It was a good, very good experience. In fact, बनारस में मैंने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया जो किसी को नहीं पता है। आई थिंक मैं अकेले निकल गई थी अपनी टीम के साथ। एंड बैंकॉक में हमने बहुत मस्ती की। Just like I said कि हम रात में अक्सर बैठ जाते थे, मंडली जमाते थे अपनी और गाने गाते थे। So that was great fun. It was a overall very good experience, learning experience रहा है मेरा। बहुत अच्छा सीखा है मैंने, बीइंग अ इम्प्रोवाइजिंग एक्टर सीखा है मैंने यात्री से। सो दैट्स व्हाट आई एम टेकिंग बैक होम एंड ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। इंडिया में यात्रा करने का अलग ही मज़ा रहता है। तो आप लोगों की कोई मेमोरेबल जर्नी है कुछ इंडिया में, ट्रेन से ट्रैवल करने की या कहीं मतलब पर्सनल लाइफ में पूछा? पर्सनल लाइफ में हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ट्रेन तो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही है। फ्लाइट तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बाद में आई है। हम पहले वही लोग थे जो ट्रेन में बिना टिकट के भी हमारी फैमिली जाया करती थी, और जहाँ भी जगह मिले थोड़ा सा बिस्तर बिछा लिया और बच्चों को सुला दिया, और ट्रेन से उतर के सुराही भरना और घर से बनी हुई पूरियाँ और अचार खाना, वो हमारी ज़िंदगी रही है। तो हम देखते देखते यहाँ तक पहुँचे कि आज हम फ्लाइट की बात करते हैं और हम दूसरी दुनिया की बातें करते हैं, पर हमारे रूट्स तो वही हैं। और सबने, मुझे लगता है सभी ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस ली हैं, और शायद इसी वजह से ऐसी फिल्में आज भी बन पा रही हैं। जी जी बिल्कुल। बट मैम एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। मैंने कहीं हॉलीडे में कभी कर नहीं पाई हूँ विद माई फैमिली, बिकॉज मैं जब छोटी थी तो डैड बहुत ज़्यादा बिजी होते थे। तो हमने कभी इंडिया में तो हार्डली कुछ ट्रैवल किया होगा। शायद डैडी अगर शूट पे जा रहे हैं तो उनके साथ हम कहीं गए होंगे, लेकिन मैं कभी छुट्टियों पे नहीं गई इस तरह से। तो इस फिल्म के जरिए मैंने ये एंजॉय किया, यू नो, अ प्रॉपर हॉलीडे विद माय फैमिली। और ये ट्रूली, ये मेरी मम्मी थी, ये मेरे डैड थे, और मुझे वो एक्सपीरियंस मिला। सो थैंक यू सर। वो लगता था देख के ना कि एकदम फैमिली। But I'll say one thing here. मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं फैमिली के साथ ट्रेन में जाने के लिए, गाड़ी में यात्रा करने के लिए, क्योंकि जैसे सीमा जी ने कहा, पूरी अचार सब्जी सब बांध के हम लोग लेके जाते थे और पूरी फैमिली हम लोग ट्रेन के जाते थे। वो हम आज तक हम मिस करते हैं, क्योंकि वो जो यात्रा होती है ना, वो हरदम सबको एक बहुत क्लोजनेस, बहुत नज़दीक ले आती है फैमिली को। और वो आज बहुत मिसिंग है कि किसी के पास टाइम नहीं है, सब फ्लाइट्स पर जाने मांगते हैं, यू नो। सो आई थिंक दिस मूवी विल डेफिनेटली bring back a lot of closeness, family closeness, and lot of values back, you know, hopefully. सीमा जी ने खाने की बात की, मुझे याद आ गई एक चीज़, खाना, अचार, रोटी। पहले लोग थिएटर में भी रोटी सब्जी लेके जाते थे अगर आपको याद है, क्योंकि वो खाना इतना होता नहीं था थिएटर में। मुझे याद है कि मम्मी हम सब जाते तो जैसे किसी को खुलता था इंटरवल में,
तो पूरे थिएटर में उसकी अचार की खुशबू आ जाती थी। बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। पर काफ़ी सारी फ्लाइट ऐसे जो अहमदाबाद टू बॉम्बे आती हैं वो काफ़ी ट्रेन का एक्सपीरियंस दे देती हैं क्योंकि काफ़ी मैंने देखा आसपास से फावड़ा नमकीन जाते हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग ये भी ट्रेन की एक फीलिंग यहाँ पर भी आ जाती है। लेकिन आजकल की ट्रेन का जो सफ़र है तो वो मज़ा बिल्कुल नहीं दे पाता। उसकी वजह ये है कि मैंने तो बिल्कुल एक्चुअली इन ट्रेनों में वो कोयला मिस करता हूँ मैं, जो आँख में जाता जो जो विंडो खुले होते थे, कोयला ज़्यादा जब घर पहुँचते बिल्कुल कोयले के रेशे जो दिमाग में घुसे होते थे, उनको छुड़ाने में बड़ा मज़ा आता था। मतलब उसके बाद 3-4 दिन तक नहाते रहिए लेकिन वो ट्रेन नहीं जाती थी दिमाग से। तो वो मज़ा अभी मिस करते हैं हम, जब ट्रेन में कभी जाना पड़ता है। कि उन दिनों AC वेसी तो हुआ नहीं करता था, तो हम ऐसे ही गुजर जाते थे। और यकीन मानिए जब मैंने ब्रेकफास्ट कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में। हम तो कलेवा करते थे, पहली बार ब्रेकफास्ट नाम मैंने ट्रेन में ही सुना था। तो ये वो सब है ट्रेन की यादें, जो जर्नी जो हुआ करती थी। और बहुत की है मैंने, तो मैं बिल्कुल बताया मैंने खाना बदोशों वाली ज़िंदगी जी है। तो ट्रेन तो अक्सर आए दिन रहती थी, ट्रेन या बस या जो भी है, तो कोई किसी से कम नहीं था, ना ट्रेन कम थी ना बस कम थी, सब में। मैंने तो बिहार में भी खूब सफ़र किया है, जो छत पे चढ़ के। और ट्रेन में अंदर जगह होती थी, लेकिन गर्मियों के दिनों में हम छत पे चढ़ जाते थे। और वहाँ की इतने किस्से हैं, एक आध किस्सा हो तो मैं बताऊँ, इतने हैं कि पूरी एक किस्से में फिल्म मिल जाएगी। तो बस इतने यहीं तक काफ़ी है कि मैं आजकल कोयला बड़ा मिस करता हूँ, मैं कभी ट्रेन में जाता हूँ। मैं हरीश मेहता हूँ, बॉलीवुड न्यूज़ स्टेशन से। मेरा सवाल हरीश जी को है। हरीश जी, बैंकॉक में आपकी आधी शूटिंग आपकी बैंकॉक थाईलैंड में हुई, और एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए टाइम फ्रेम में शूटिंग कंप्लीट होना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी बात होती है। तो क्या ये आपकी फिल्म टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो गई? जी बिल्कुल, जो तय किया था उसी टाइम फ्रेम में हुई। हम एक शुरू से ही पहले एक टाइम निर्धारित करके गए थे, इसलिए टाइम है। अब यकीन माना हमारी रिटर्न टिकट भी सबकी बुक थी, अगर एक दिन रिपोर्ट होता तो सबकी टिकट कैंसिल होती। बट समहाउ जब आप जाते हैं तो अलग जगह जाते हैं, वहाँ अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ों पे आप औरों पे भी डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो सब होता है, उसका पार्ट है, और मुझे लगता है ये फिल्म का हिस्सा ही होता है। हर फिल्म में सब तरह की दिक्कतें भी आती हैं, और उससे निकल के जाना ही फिल्म मेकिंग है। तो वो हम सब गुजरते हैं, और लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हमने एकदम टाइम से ख़त्म किया। कोई ओवर शिफ्ट नहीं गए हम बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमने शूट किया, क्योंकि हम मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और जब आपको एक बार काम में मज़ा आने लग जाए तो फिर आप सब निकल जाता है। बिल्कुल टाइम फ्रेम में करना बहुत ही, सर ने बहुत अच्छे से बताया कि बिल्कुल फास्ट सब कुछ करना था, और सर कर रहे थे। बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, इतनी तेज़ी से हो रहा था कि एक बार हम शूट कर रहे थे और सर भूल गए कि हम बोट पे रह गए, और सर दूसरे लोकेशन पर पहुंच गए शूट करने के लिए। और मैं तीनों हम बोट में फंसे रहे फ्लोटिंग मार्केट के अंदर। कुछ देर तक सर ने कहा, अरे उस पिक्चर में मैंने चप्पू चलाया था, मैं चप्पू चलाऊंगा। सर कोशिश कर रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, बोट हमारी आगे नहीं जा रही थी। और फिर हम अटके रहे बोट के अंदर काफ़ी देर तक, और पूरी टीम दूसरे लोकेशन पर पहुंच गई, सेटअप करने लग गई। और फिर मैम ने चिल्लाना शुरू किया, है कोई है। अचानक से दूसरी बोट पे कुछ वहाँ के लोकल्स आए, खाना भांग 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 खापुंग खा। मैंने बोला ए खापुंग खाप छोड़, अंदर से सापुन साप निकलेगा, उतर हमको। फिर उन्होंने बोट हमें शिफ्ट किया दूसरे बोट पर, फिर हम पहुंचे। इसलिए इतनी तेजी से काम चल रहा है। अब इतना जैबी ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, देखिए आप। और ये एक्चुअल जैबी का जो कैरेक्टर है वो ये देखो अब निकल गया एकदम से बढ़िया। और ये एक्चुअल में हुआ था, क्योंकि हमें इतना टाइम था, लाइट जा रही है शाम को, वो लोकेशन दोबारा नहीं है, और शूट हुआ। तो मुझे लगा चलो बाकी जो EP हैं उस मैम को सबको ले हम भागे उधर कैमरा सेटअप करने, और वहाँ भागे। तो मैं तो उनका अभी आ रहे होंगे, हम देख रहे हैं, तो मैम वहाँ पर अकेले एकदम से, और एक्चुअली में वो बहुत डेंजरस ही था। नहीं बट these are fun moments. इनकी लाइट जा रही है, हमारी जान जा रही है। The light is जान। और बारिश। But बारिश तो मजेदार थी। but मजेदार। थैंक यू। You have chosen the destination as Bangkok because वहाँ पर तो सब अकेले जाते हैं। So why? ये बिल्कुल सही बात है कि यही तो एक साधारण सा आदमी जिसको पता नहीं कि बैंकॉक में होता क्या है, उसका इतना इनोसेंस है उसकी लाइफ में,
उसको ये दिख रहा है कि जल्दी से यहाँ पे वीज़ा भी नहीं लगेगा और टिकट भी सस्ती है, पहुँच जाऊँगा, मेरे लिए फॉरेन ट्रिप हो जाएगा। तो उनका जो मंशा ये नहीं है कुछ और, उनका है कि मैं साथ में फैमिली को लेके जाऊँ, और उनको तभी वो हैरानी भी होती है फैमिली की, बैंकॉक कौन जाता है इस लाइफ में, इस टाइम में, वो कह रहा मैं अकेले नहीं जा, सबको लेके जा रहा हूँ। तो उसका एक इनोसेंस है उसके अंदर। हाँ, और उसके जो बजट में है, जो उसके पैसे हैं उसके अंदर, तो ये है। मंदिर दिखाने लगी। हाँ, वो कहते हैं थाईलैंड के मंदिर। हाँ, और वो वहाँ पर मंदिर दिखाए उन्होंने बाकी, लेकिन ये था कि उनको ये पता नहीं था बेसिकली। और होता है कई लोग, सब लोग इतने ना एक्चुअल में इतने स्मार्ट भी नहीं होते कई बार। अगर आप जाओगे ना बहुत अंदर, तो बहुत सीधे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और बहुत अच्छा है कि ऐसे होने भी चाहिए कुछ लोग। ये बात सही है, हमारे शर्मा फैमिली का जो सदस्य है वो एक्चुअली बहुत सीधे थे। वो हंसी लेकिन ऐसी लग नहीं रही है मैम। रातें भी कैसी लगती हैं। All right, then can we have some quick pictures, please? Yeah. Yes, let's have a photo op.